پاکستان میں بھی آپ کے لیے فیسلٹیز تو تھی نا، آپ اپنی مرضی سے گئے؟ میں بہت زیادہ فیسلٹیز تھی. میں جب انجینئرنگ کر رہا تھا تو میں اس دوران بھی بہت اچھی ہینڈسم اماؤنٹ کما لیتا تھا. مطلب کرنے والا ہو تو یہاں بھی موقع تو ہیں نا. بالکل بالکل. دیکھیں اگر ایسا کیسے پاسبل ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنی ایفرٹ کریں، ایک ٹریک چوز کر کے اس پہ آپ لگ جائیں، اللہ پھر آپ کی مدد کرے گا. تو پاکستانی جو کسٹمر ہیں جی اس کے بارے میں بھی جو بزنس مین ہے وہ کوئی اچھے کمنٹس کریں، آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اچھا، ایپل اسٹور پہ آپ کے پاس ایپل کی تمام اسیسریز ہیں کہ آئی فون کو ڈیل کریں؟ نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے بزنس میں یار نہیں آپ نے ادھر سے ایپل اسٹور بنایا، 6 بندے آپ کے پاس کام بھی کر رہے ہیں. جی السلام علیکم، میں ہوں محمد حمزہ اعظم. کہتے ہیں کہ جب قسمت مہربان ہو تو وہ انسان کو زمین سے آسمان تک لے جاتی ہے. کچھ لوگ اپنی محنت اور لگن سے یہ کارنامہ سر انجام دیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ایسے ایک نوجوان موجود ہے جو زیرو سے شروع ہو کے لاہور جیسے شہر میں ایک بڑے پلازے میں ایپل اسٹور کا مالک بن جاتا ہے. جی ان کی ترقی کا راز اور ان کی محنت اور جس طرح انہوں نے یہ سفر طے کیا آج انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی مظفر بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ خیریت سے؟ سب سے پہلے تو آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ہم آپ کو ویلکم کرتے بہت ہیں. شکریہ. تھینک یو. تو اس کے بعد مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پاکستان کے کس شہر سے تعلق ہے؟ میں بائی برتھ ہی لاہور سے ہوں اور اسی شہر میں آپ کے ساتھ آج ملاقات ہو رہی ہے. اور آپ کی ابتدائی تعلیم بھی ساری لاہور سے ہی ہے؟ جی اسکول بھی ادھر ہے اور کالج بھی ادھر ہے، یونیورسٹی بھی ادھر ہی تھی. بڑا شہر ہے تو ساری سہولیت یہاں ہی تھی اور ساری زندگی یہاں ہی گزاری ہے. اور آپ کا جو تعلق ہے کسی متوسط گھرانے سے تھا یا شروع سے کسی امیر گھرانے کے ساتھ؟ گھرانا تو میڈیوکر ہی ہے. لیکن میرے فادر جو ہے ایک اسکول کے ٹیچر ہے اور ہم 6 بہن بھائی تھے، تو ایک نارمل فیملی سے تعلق تھا ہمارا. تو بچپن میں کس طرح کے آپ اسٹوڈنٹ تھے؟ سنجیدہ تھے یا شرارتی تھے؟ شرارتی تو بالکل بھی نہیں تھا، لیکن بچپن میں بچے چھوٹا موٹا کچھ کر بھی لیتے ہیں، لیکن شرارتی نہیں تھا. مطلب میری وجہ سے کسی کا نقصان نہیں ہوا ہوگا، کوئی گھر میں کوئی کمپلین نہیں آئی ہو کہ کسی کی میں نے دروازہ کھڑکا دیا یا ایسا کچھ نہیں کیا، یہ گارنٹی. تو ایک تو آپ کی کامیابی کا یہ بھی راز ہو گیا کہ بچپن سے آپ سنجیدہ تھے. سنجیدگی تو دیکھیں بہت اگر فارغ لوگ بھی سنجیدہ رہتے ہیں تو یہ ضروری تو نہیں کہ کامیابی سنجیدہ. نہیں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ایک کام کو سنجیدہ ہی نہ لیں. جی ہماری کا یہ تو مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہی تو بچپن میں ماں باپ سے کوئی مار شار بھی کبھی پڑی ہے؟ والد صاحب سے تو کبھی بھی نہیں پڑی. والدہ کا ہمارے اوپر ایک ڈر خوف تھا، تو والدہ سے تو ان گنت بار بہت بار پڑی. اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھے اسکول میں ہوں یا کالج میں ہوں اور آپ کسی متوسط گھرانے سے ہوں تو بچے خصوصی طور پہ نا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں دوسرے بچوں کو دیکھ کے. آپ کو بچپن میں ایسا دیکھ کے لگتا تھا کہ یار کبھی میں بھی انشاءاللہ بڑا میں بندہ بنوں گا، کوئی بزنس مین بنوں گا؟ ہاں جی ریئلائز تو ہوتا تھا. دیکھیں اگر پاکٹ منی کا بھی کمپیریزن کریں نا تو ایک باپ کمانے والا ہو تو کتنے اپنے 6 بچوں کو کیا کیا مطلب پر ڈے ڈسٹریبیوٹ کرے گا. تو اس دوران ہمیں ریئلائز ہوتا تھا، لیکن میں سوچتا تھا کہ یار میں ایفرٹ زیادہ کروں گا، ایک اچھا ٹائم آئے گا، اور رائٹ ٹائم کا ویٹ کیا ہے تو ایفرٹ تو کی ہے. ایسے ہی تو اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. میٹرک کے بعد کون سی ڈگری؟ میں نے میٹرک کے بعد میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی اور اس کے بعد میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی. میں گریجویٹڈ الیکٹریکل. اچھا آپ انجینئر بھی ہیں؟ جی میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی. تو انجینئر کے لیے پاکستان میں ویسے بھی بڑی فیسلٹیز ہیں، آپ نے کوئی جاب کے لیے نہیں اپلائی کی؟ اصل میں جب میں نے اپلائی کرنا تھا تو تب نا انٹرنشپ وغیرہ کو 20-25 ہزار آفر کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ اسی دوران میں نے مڈل ایسٹ دبئی میں میری کوئی کمپنی میں جاب ہوگی اور وہ مجھے اچھا پے کر رہے تھے. تو میں نے پہلی جو اپنی پراپر جاب گریجویشن کے بعد کی وہ مڈل ایسٹ میں جاب میں جوائننگ کی تھی. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے سب سے پہلے آپ کو جو آپ نے جاب کی وہ بھی پاکستان میں تو نہیں نہ ملی؟ آپ ملی بہت زیادہ مل رہی تھی، لیکن میں نے اپنا ایک ٹریک چوز کیا. مجھے ایک آپشن مل رہی تھی، میں وہاں چلا گیا تو وہاں سروائیو کرنا ہی. دیکھیں اب میرا خیال 22 سال کی عمر میں پہلی بار ملک چھوڑ کے گھر والوں سے دور، تو حوصلہ ہی کرنا پڑتا ہے، ایفرٹ تو کرنی پڑتی نا. تو ایک اچھی آپشن مل رہی تھی، میں وہاں پہ ٹریول کر گیا. پاکستان میں بھی آپ کے لیے فیسلٹیز تو تھی نا، آپ اپنی مرضی سے گئے؟ میں بہت زیادہ فیسلٹیز تھی. میں جب انجینئرنگ کر رہا تھا تو میں اس دوران بھی ایک بہت اچھی ہینڈسم اماؤنٹ کما لیتا تھا. میں یونیک اکیڈمی میں یا کسی اور جگہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا لیتے تھے اور اس سے اچھی خاصی ایون میں اپنی یونیورسٹی کی فیس بھی انہی بچوں سے ارن کر کے وہاں پے کرتا تھا. تو بہت زیادہ فیسلٹیز ہے پاکستان میں. اچھا ایک تو بات ابھی یہ پروو ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہے کچھ نہیں،
आपने इस बात को तो अभी यहाँ रद्द कर दिया कि आपने कहा कि आप फीस भी मतलब करने वाला हो तो यहाँ भी मौके तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अगर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं। और मैं थोड़ा सा आपका टॉपिक अगर चेंज कर दूं, यहाँ से बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे मतलब जो पाकिस्तान में लाहौर में कहीं भी कोई काम नहीं करता और वो कहता है उसको बाहर भेज दें, तो बाहर जाकर भी क्या करेगा, वहां पे उसने फारिग ही रहना है। आप अगर इधर नहीं है तो हुनर लें, कोई स्किल हो आपके पास तो आप यहाँ भी कामयाब हैं। तो ये बिजनेस आइडिया कैसे आया? बिजनेस आइडिया अपने मैं असल में मैंने 2 साल जब जॉब की ना, तो उससे पहले मैं टीचिंग करता था। तो टीचिंग में तो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और आप लिमिटेड सा टाइम में आप पढ़ा के अपने घर वापस चले जाते हैं। अब जब मैंने 2 साल जॉब की तो उसकी ड्यूरेशन थी 8 घंटे। अब मैंने सोचा कि अगर मैं 8 घंटे एक जगह बाउंड होकर बैठा रहूं तो क्यों ना मैं अपना कोई कारोबार कर लूं। अगर मैंने बैठना ही है कहीं, तो फिर मैंने वहाँ 2 साल जब जॉब करा तो मैंने प्लान किया मैं अपना जाके कोई कारोबार करूंगा अपने मुल्क में, अपने पाकिस्तान में। तो जब अपना इधर आके बिजनेस स्टार्ट किया उस वक्त अपने पास कुछ इन्वेस्टमेंट थी या घर वालों से थी? घर वालों को तो कभी इस मामले में तंग ही नहीं किया, जो भी रिस्क लिया अपने बलबूते पे लिया। और वो मेरी 2 साल की जो सेविंग थी, जो मैं जॉब कर रहा था दुबई में, वही मैंने यहाँ पे आके इन्वेस्ट किया। इमीडिएटली मतलब फौरन आते साथ ही मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। 2-3 महीने मैंने रियलाइज किया कि मैं क्या काम करूँ। तो मुझे ये एक अच्छी मार्केट, जो मैंने आईफोन का काम स्टार्ट किया कि मैं एंड यूजर को डील करूंगा, उससे मुझे जो भी पेमेंट होगी उसको एंड यूजर को दूंगा। वहां से मैंने इनिशिएट किया। अच्छा, अमूमन हमारी यूथ में जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो हम शॉर्टकट वाली काम है ना, हम ये कहते हैं कि वैसे तो जो बंदा सीढ़ी से ऊपर जाता है उसे एक चीज का रास्ता पता चल जाता है, वो गिर भी जाए ना उसके पास ऑप्शन होता है। पहले दिन आपको नहीं ये ख्याल आया कि यार मैं पहले दिन एप्पल स्टोर बना लूं? नहीं, पहले दिन तो देखें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। शॉर्टकट वाला बंदा कभी कामयाब नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आप अपनी एफर्ट करें, एक ट्रैक चूज करके उस पर आप लग जाए, अल्लाह फिर आपकी मदद करेगा। तो शॉर्टकट तो ये तो इम्पॉसिबल बात है ना। शॉर्टकट में आप बहुत जल्दी गिर जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। एक आप एक ट्रैक पे लगे रहे और आप मेहनत करें अपनी। तो पहले जब ये बिजनेस स्टार्ट किया आपने फीस सेंटर में या फीस सेंटर हाजी गुलबर, तो उधर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट और कितने मसलन आपने एक शॉप खरीदी या बिल्कुल नहीं? सर शॉप तो मेरे ख्याल उस दौरान भी कोई 3-4 करोड़ रुपए की होगी और आज भी हमारी अपनी की मतलब पर्सनल वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है, रेंटेड ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस हमारा एक कंपनी बन गई है। तो हमने जब पहला स्टार्ट किया था, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैंने और उसने मिलके, उसके बाद अच्छा खासा उस मार्केट का एक्सपीरियंस था और मेरे पास कुछ सेविंग थी, तो हमने दोनों ने म्यूचुअली वहाँ पे एक थोड़ी सी जगह शेयरिंग में, एक शॉप के में शेयरिंग में, और हम भी शेयरिंग में थे और शॉप भी उनसे शेयरिंग में ली, थोड़ी सी जगह पे अल्लाह का नाम लेके बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने अपना काम बढ़ा दिया। मतलब आपकी जो बिजनेस है वो भी शेयरिंग में था और दुकान में भी आपने एक शेयरिंग खरीद ली? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वक्त लगता था कि ये शेयरिंग जो है एप्पल स्टोर तक ले जाएगी? नहीं, सोचता था कि काम को बढ़ाएंगे, मैं एक वेंडर बनूंगा, सोच बड़ी रखता था कि मैंने मेहनत करनी है। जो भी हमारा मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, आप उसको कह सकते 11 बजे हमारे वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते थे ऑफिस सेंटर के, 11 से रात 11 तक, मतलब 12-13 घंटे एक ही जगह पे बैठ के हमने जो भी बिजनेस किया, एफर्ट की। तो पाकिस्तानी जो कस्टमर हैं जी, उसके बारे में भी जो बिजनेसमैन है वो कोई अच्छे कमेंट्स नहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पाकिस्तानी बहुत बहुत अच्छा कस्टमर भी है। देखें हर तरह के हर जगह भी लोग होते हैं, खाली यही नहीं कि पाकिस्तान में अच्छे बुरे लोग हैं, हर जगह ही होते हैं। यहाँ कुछ लोग आपकी बात बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। असल में अब कस्टमर का भी मसला नहीं है, कुछ हमारे ही रेलिवेंट लोग होते हैं, जब आप किसी को गलत चीज बेचेंगे फिर वो सारे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। तो हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत अच्छा कस्टमर है। अभी इन शॉर्ट मैंने जो भी अर्निंग की है यहाँ पाकिस्तान में रह के की। तो अभी जो आपने ये एप्पल स्टोर बनाया है वो उसी हफीज सेंटर में है? जी, वो अभी हफीज सेंटर की एक्सटेंशन है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग। जो हफीज सेंटर में पहले पार्किंग थी मेन बुलेवार्ड पे, अभी वहाँ एक नई बिल्डिंग बन गई है। उस बिल्डिंग में एंटर होते साथ ही हमने अभी जो एप्पल स्टोर बनाया। अच्छा, एप्पल स्टोर पे आपके पास एप्पल की तमाम एक्सेसरीज हैं कि आईफोन को डील कर रहे हैं? एप्पल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आईफोन है, आईपैड है, उसमें एप्पल वॉचेज आती हैं, एयरपोर्ट्स आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मैकबुक है, हमारे पास एप्पल की सब प्रोडक्ट्स होती हैं। और कितने बंदे आपके पास इस वक्त काम कर रहे हैं? अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 एम्प्लॉय हैं। अच्छा, अभी आपके 6 एम्प्लॉय हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी खुशी तो होती होगी कि ये 6 बंदों के वसीला, बेशक रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हाथ भी लाने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही।
तो आपको कैसा लगता है, जब खुशी होती है जब पाकिस्तान में इस बेरोजगारी के दौर में 6 बंदे आपके पास पल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह ताला का करम है, एहसान है उस ज़ात का। बहुत ज़्यादा खुशी होती है और सोचते हैं कि इस ट्रैक को बढ़ाएं, एक चेन बढ़ाएं। इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर में एक बड़े शहर में अपनी एक आउटलेट भी बना रहे हैं, तो भी इंशाल्लाह आपके पेज के तवस्सुल से वो भी लोगों को बताएंगे। नहीं तो मुझे ये बताएं कि लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान के बिजनेस में यार नहीं है, नहीं आपने उधर से एप्पल स्टोर बनाया, 6 बंदे आपके पास काम भी कर रहे हैं, अब तो आप बॉस होंगे। मैं इधर बॉस नहीं, मैं असल में आपको क्लियर कर दूं, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ। इवन मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ। मुझे अगर रियलाइज होगा ना कि ये जगह साफ नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको साफ करो, बल्कि कपड़ा पकड़ के खुद साफ कर दूंगा। तो लीडर बनना चाहिए, बॉस तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आजिज़ी जान सी एक कामयाब बिजनेस के लिए वो भी बहुत जरूरी है सर, आजिज़ी तो बहुत जरूरी है। अभी क्या ये सब दुनिया का माल इधर ही रह जाएगा, तो आजिज़ी तो डेफिनेटली बंदे में होनी चाहिए। अब पैसा शैसा आ गया है, तो अब आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ और अल्लाह ताला की रहमत, मेरे पास मेरी 2 बेटी हैं। अब खुशी होती है कि यार जो सहूलतें मुझे नहीं मिली थी, जब वो बंदा फिर अपनी औलाद तक डिलीवर करता है ना, तो फिर वो एक सुकून मिलता है कि यार मैं ये जो मुझे नहीं मिल सका। तो अभी आपको कैसा फील होता है? बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है कि मतलब मेरे बच्चे आज उनको इतने ब्रांड के नाम आते हैं। मतलब हम अभी कभी कभी मायूस हो जाता हूँ कि मेरी वालदा का जल्दी इंतकाल हो गया। तो बहुत जल्दी, जब मैं 15 साल का था, उन्होंने तो सब कुछ ये देखा ही नहीं, और तब तक तो हालात वर्स्ट ही थे। मतलब हमारे तो घर में एसी भी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तब तो ट्रेंड भी नहीं था। आपका एसी का ट्रेंड ही कोई 2005 उसके बाद ज़्यादा स्टार्ट हुआ। तो रियलाइज तो होता है कि मतलब आज बच्चों को अल्लाह ताला ने, मतलब हमारे बच्चे मतलब इतनी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाज दिए, बहुत फील होता है। हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज, क्योंकि अभी आप भी जवान ही लग रहे हैं, कोई आप इतने बूढ़े तो हो नहीं है, तो यूथ बहुत जल्दी यार पाकिस्तान की मायूस हो जाती है। तो उनके लिए, जैसे आप किसी से देख के मोटिवेट हुए, आपने तो कहा कि आपने अपने आप से खुद ही मोटिवेट हुए हैं जी, तो कोई ऐसा बिजनेस आइडिया हमारे यूथ के लिए? अच्छा, मैं इतना जवान तो नहीं हूँ, मेरी 33 साल मेरी उम्र है, और यूथ के लिए ये है कि यार सबसे पहली चीज तो बेसिक एजुकेशन जरूर लें। मतलब आपको कोई बात करनी तो आनी चाहिए ना। अब मेरे पास कुछ बड़े बड़े बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, कोई डॉक्टर है, कोई एम्बेसडर है, कहाँ से लोग आते हैं, तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। ये मैंने जो बेसिक एजुकेशन है, ये मैंने स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, आपके पास बेसिक एजुकेशन हो, साथ साथ कोई स्किल लें। अभी कुछ लोग शॉर्टकट देखते हैं, कोई क्रिप्टो, कोई इधर उधर, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मतलब आप पैसे जो बना रहे हैं कि आपने कहा कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, मैंने इतने कमा लिए, बेसिक एजुकेशन के साथ आपके पास कोई ना कोई स्किल होना जरूरी है। कोई भी आप ट्रैक चूज कर लें, स्किल होगा तो आप सक्सेसफुल हैं। अच्छा, अमूमन लोग कहते हैं कि यार मैंने बड़े होकर कारोबार करना है, बिजनेस करना है, मुझे तो एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। एजुकेशन का इधर मीनिंग इन्होंने सिर्फ जॉब तक हमने रख लिया है ना। अगर वैसे तो एजुकेशन का जो असल मकसद है वो तो शऊर है ना। तो आप ये, अब आप तो इंजीनियर भी हैं माशाल्लाह, तो आपको ये रियलाइज तो होता है ना कि एजुकेशन भी एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखें कि आपको अगले बंदे से डील कैसे करना है, ये आपको एजुकेशन सिखाती है। आप अगर हम बात करें एमबीए, आप जो मार्केटिंग करते हैं उसमें आपको सिखाते हैं कि आपने कस्टमर से प्रोडक्ट डील, उसके प्रोडक्ट नॉलेज होगा, डील करेंगे ना, तो आप अपने बच्चे को बेसिक एजुकेशन तो जरूर दें ना, उसको अवेयरनेस हो। कल को आपने अपने बच्चे को कहीं लेके जाना है, कुछ करना है, कहीं आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, लोग पजल हो जाते हैं, कहीं भी आपने ट्रैवल करना है, तो बेसिक एजुकेशन तो आपको हर जगह साथ देती है। आप बिजनेस में, लाइफस्टाइल में, हर जगह साथ देती है। अच्छा, अभी लाहौर में अपना जाती घर भी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम लोग शेयरिंग में थे, 2-3 साल पहले अल्लाह ताला ने मेरा पर्सनल एक घर है, अल्लाह का दिया सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैरून मुल्क सफर किए? बैरून मुल्क बहुत ज्यादा सफर किया। मेरी जिंदगी में पहला सफर मेरा 2013 में था। मैंने सबसे जिंदगी में पहली बार बाय एयर जो मैंने ट्रैवल किया, मैं दुबई गया। अब तो उसके बाद मेरा दुबई, चाइना, तुर्की, सऊदी और उम्रे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है। ये जनाब मुदस्सर साहब का जो भी इन्होंने ये बताया, इन्होंने घर अपना बनाया लाहौर में, हफीज सेंटर में इन्होंने अपना एप्पल स्टोर बनाया। एप्पल स्टोर में सिर्फ मोबाइल की हद तक नहीं, एप्पल की तमाम एक्सेसरीज इनके पास मौजूद हैं, और बैरून मुल्क भी काफी। तो हमारी यूथ के लिए ऐसे लोग, ये कोई अमीर ज़ादे नहीं है, उन्होंने भी बताया कि बिल्कुल वो एक लिमिटेड बजट में इन्होंने अपनी एजुकेशन भी, फिर इंजीनियर भी हैं,
फिर जॉब छोड़ के। तो मुदस्सिर भाई इधर एक थोड़ी सी आप बात बता दें कि आपका ये जो सफर है, आप बिजनेस कितना ये टाइम पीरियड है आपका, जब से आपने शुरू किया और अभी आप एप्पल स्टोर तक पहुंच गए? ऑलमोस्ट इसमें आपकी 8 से 10 साल की ये सारी ड्यूरेशन है, और उसमें आप ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जो कंपनी एडवांस टेक मेरी कंपनी है जिसका मैं CEO, वो हम यूएस बेस्ड कंपनी, वो यूएस बेस्ड इस तरह से है कि अभी हम हमारा जो भी वेंडर है हम लोग यूएस से अपनी इंपोर्ट करके पाकिस्तान में यहाँ सेल करें। तो 8 से 10 साल की ये ड्यूरेशन है। इसमें मतलब मैं एक शॉपकीपर से आज एक कंपनी का CEO बन गया हूँ। ये 8 से 10 साल की टोटल ड्यूरेशन है। अच्छा, एंड पे एक हमें और थोड़ी सी बारीकी की बात बता दें कि ये आईफोन में ऐसा क्या कमाल है कि ये वो जैसे ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं, सिर्फ वही बात है कि वाकई इसमें जो इतनी इसकी प्राइस होती है, क्योंकि आप तो डील करते हैं। नहीं सर, देखिए आईफोन एक बहुत बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है। अब यहाँ पे हमारे बहुत से पाकिस्तान में लोगों को ये भी नहीं पता कि आईफोन भी पाकिस्तान में आपका फोन क्लेम भी हो जाता है। कुछ लोग कभी किसी दौर में कहा करते थे कि इसकी वारंटी कोई नहीं होती। वो अपने कस्टमर के साथ मतलब इतना सिंसियर है, आपको लगे कि आपके फोन में कोई इशू आ गया तो ऑन दी स्पॉट आपको नई प्रोडक्ट दे देंगे, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे। तो अब रही बात क्वालिटी की, आप एक क्वालिटी अगर मैं बात करूं कि तो इसकी डायमेंशन, इसको कैरी करना और इसका जो एक शेप है, और इसके अलावा आप इसको इजी टू यूज जिस तरह मर्जी यूज कर सकते हैं। बहुत से फीचर है इसमें, जो भी आपको प्रोडक्ट नॉलेज होगा आप इसको यूज करेंगे। अच्छा, आईफोन की जो आपने बताया कि आप क्लेम कर सकते हैं, जिसने आपसे नहीं भी लिया, हमारे अगर नाज़रीन में कोई क्लेम करवाना चाहे तो आपके पास आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फोन की एप्पल वारंटी होनी चाहिए। अब एप्पल जो भी अपना फोन नया फोन जब बेचता है तो उसकी 1 साल की वारंटी होती है। अगर वो इन वारंटी है तो आपका फोन हम क्लेम करवा के देंगे, एडवांस जब उसको क्लेम करवा के देंगे। जी नाज़रीन, जो मेरे देखने वाले जो आईफोन यूजर हैं, किसी के आईफोन को मसला बन जाए तो आपने दी पाकिस्तान टीवी के रेफरेंस से एडवांस टेक के नाम से मैं इनका पेज भी मेंशन कर दूंगा। और अभी हम इनसे एंड पे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो भी देखने वाले नाज़रीन जो भी हमारे रेफरेंस से आए उनके लिए आपने कंसेशन आप करें। इंशाल्लाह हम उनको क्वालिटी प्रोडक्ट भी देंगे और जो भी जितना फुली डिस्काउंट करके प्रोडक्ट सेल भी करेंगे। लोग बहुत जल्दी यहाँ मायूस हो जाते हैं। पहली तो बात है कि लोगों को ये होता है कि यार पहले दिन ही मैं बड़ा बिजनेस सेटअप लगा लूँ। कामयाब होना है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ऐसे लोग जो है वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल पर्सनैलिटी रहे हैं। देख के हमें भी मोटिवेट होना चाहिए और हमेशा पूरा उम्मीद रहना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि जो इधर बंदे कहते हैं कि तकदीर पे ही सब कुछ छोड़ देते हैं, भाई अल्लाह करेगा। तकदीर के साथ तदबीर भी करनी चाहिए। इसके साथ मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और एंड पे जैसा कि मैं हर वीडियो के एंड पे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान, अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए हर पल दुआ गो रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम और रहम करे। अल्लाह हाफिज़।